Hello students. Today we will discuss some previous year questions of metal and non-metal. ठीक है? Some short questions which carries the 2 or 3 marks we will discuss in this video. Okay. First question, write one example of each. First part, a metal which is soft that it can be cut with the knife and a non-metal which is hardest substance. ਆਪਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸੋਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਬਨ। ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਰਡੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ। ਓਕੇ। A metal and a non-metal which exist as a liquid at room temperature. Metal ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ liquid at room temperature ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। non-metal ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ room temperature ਦੇ ਉੱਪਰ liquid ਹੈ? bromine. ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, mention the name of the metals for the following. Two metals which are alloyed with the iron to make a stainless steel. ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਲੋਏ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਨਿਕਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਟੂ ਮੈਟਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲੇ? ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੀ ਹੈ। state 3 reasons for the following facts. First ਹੈਗਾ sulfur is a non-metal and the magnesium is a metal. ਆਪਾਂ ਕੀ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਲਫਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪੀਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਲਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਲਫਿਊਰਸ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕਸ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੈਟਲ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨੇਬਾਰ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਨੇਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਨੇਬਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿਨੇਬਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਓਰ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਸਲਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਨੇਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਕੀ ਹੈ ਗੈਸ ਕੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਕਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 19 ਐਂਡ ਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 17, ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਸ਼ੈਲ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ, ਐਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਐਨ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੇ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 8 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 1, ਠੀਕ, 2 8 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਸ਼ੋ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ KCl ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ KCl ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਜੇ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ 7, ਮਤਲਬ 7 ਹੈ, 7 ਜੇ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜਸ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ KCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੇਮ ਦੀ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ KCl। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, K ਪਲੱਸ ਤੇ ਕੀ Cl ਮਾਈਨਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਤੇ ਕੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਸਲਫਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੀ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 20 ਤੇ ਕੀ ਆ ਸਲਫਰ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 8 8 ਠੀਕ ਹੈ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ 2 8 ਤੇ 6। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ K ਸ਼ੈਲ L M N ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ K L M ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੀ 2+, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਲਫਰ 2- ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ
ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ। ठीक है, जब अट्रैक्ट करने के तो की बन जाएगा कंपाउंड कैल्शियम सल्फाइड। ओके, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस किहड़े प्रेजेंट है, कैल्शियम 2+ ते सल्फाइड 2- किया, एनाइन ते कैटाइन इहदे विच प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यू आर गिवन द सैंपल्स ऑफ 3 metals सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज़ टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। अपने को 3 metals ने किहड़े सोडियम, मैग्नीशियम ते की कॉपर। ठीक है, हुण आपां नूं की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर दे विच इहनूं अरेंज करना। आपां की करांगे। ठीक है, ये तीनों मैटल्स है, मैटल की की आप वाटर के नाल रिएक्टिविटी शो करवावांगे। ठीक है, उस दे नाल आपां नूं की इहदी रिएक्टिविटी देखो, सोडियम आपां की पढ़िया सी, सोडियम की हाईली रिएक्टिव मैटल है। ठीक है, इनू की जब वाटर के नाल रिएक्ट करवाओगे ये इन्ना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करूगा। ठीक है, तो की बनाऊगा सोडियम ऑक्साइड प्लस की हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक ये कोल्ड वाटर के नाल इनू रिएक्ट करवाया तो कि ईजली रिएक्ट हाईली रिएक्ट हो गया। ठीक है, तो नैक्सट की मैग्नीशियम में जब आप कोल्ड वाटर के नाल रिएक्ट करवाया तो कि रिएक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करूँगा, बट मैग्नीशियम में जब आप हॉट वाटर के नाल रिएक्ट करवावांगे तो कि रिएक्ट करके की बनाऊँगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस की हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करूँगा। ठीक है, तो कॉपर है जो कॉपर की है ना ही की है हॉट वाटर के नाल, ना ही की कोल्ड वाटर के नाल रिएक्ट करूँगा, ये कोई नो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इस तो आप इन्हों की रिएक्टिविटी का की है डिक्रीजिंग ऑर्डर पता, मतलब क्या सोडियम की हाईली रिएक्टिव है कि वाटर के नाल ईजिली रिएक्ट किया इन्हें। ठीक है, मैग्नीशियम की आप हॉट वाटर के नाल रिएक्ट करवाया। ठीक है, इनू की कंडीशन देनी पई। ठीक है, इन्हें की कोल्ड वाटर के नाल रिएक्ट नहीं किया, इनू कि आप हॉट वाटर के नाल रिएक्ट करवाया। कॉपर ने की किसी नाल रिएक्ट नहीं किया वाटर के नाल, तो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा you are provided with the magnesium ribbon and the sulfur powder. Explain with the help of an activity that metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic in nature. किवें करांगे आपां, किहड़ी एक्टिविटी इस दे विच की करांगे, देखो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम नूं कि आपां बर्न करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो की बनाऊगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की है आप बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले। तो सल्फर नूं भी आप बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन्हें की दिता सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फरदर आप की करांगे मैग्नीशियम ऑक्साइड नूं आपां की वाटर दे विच डिजोल्व करांगे। ठीक है, तो आपां नूं की मिलूगा वाटर के विच डिजोल्व करके कि एक सल्यूशन होगा। ठीक है, सल्यूशन के आप की करेंगे लिटमस पेपर में जब डिजोल्व करांगे तो आप चेंजिस देखा। ठीक है, एवं ही सल्फर डाइऑक्साइड की आप सल्यूशन बनाया वाटर के विच डिजोल्व करके कि ये भी आप लिटमस पेपर किया की करेंगे लिटमस पेपर में इमर्स करांगे, जबकि ये ड्रॉप की लिटमस पेपर के उपर पावेंगे तो आप ऑब्जर्व करांगे चेंजिस। आप पढ़िया सीगे, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के मेटल ऑक्साइड्स की सीगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो बेसिक होंगे तो की करनगे रैड लिटमस पेपर नूं टर्न कर देंगे ब्लू दे विच। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की नॉन मैटल है, सल्फर की नॉन मैटल है, ये की चेंजिस आऊगी, ये की करूँगा ब्लू लिटमस पेपर नूं की रैड दे विच चेंज करांगे। ठीक है, ऑब्जर्व करांगे, जब आपां नूं पता लग गया तो इट मीनस की एसिडिक है, तो इत्थों आपां नूं की पता लग गया नॉन आपां पढ़िया सी नॉन मैटैलिक्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आपां नूं की पता लग गया सल्फर की है नॉन मैटल है, ये आपां की शो करना सीगा। ठीक है, नेक्स्ट हैगा गिव रीजनस फॉर द फॉलोइंग्स। स्कूल बैल्स आर मेड अप ऑफ मैटल्स। आपां नूं की इहदे रीजन देना है कि स्कूल बैल्स है जिहड़ी है मैटल तो क्यों बनदियां ने, क्योंकि जदों भी आपां स्कूल बैल्स नूं की करांगे हिट करांगे स्ट्रक करांगे बाय दी हार्ड मेटल्स इट प्रोड्यूसेस द साउंड। ठीक है, दैट्स वाई द मेटल्स आर टर्म्ड एज द सोनोरस मेटल। ठीक है, नेक्स्ट की है इलैक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। इलैक्ट्रिक वायर्स है जी कि कॉपर तो क्यों बनती हैं, क्योंकि कॉपर की है मेटल है विच शोज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ दी डक्टिलिटी। ओके, एंड कॉपर इज़ अ मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके नेक्स्ट हैगा ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर प्लेट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन अ बाथरूम वट कुड दिस ग्रीन सबसटांस बी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग अ मैटल विच इज़ प्रिजर्वड इन द कैरोसिन ऑयल किहड़ा मैटल है जिहड़ा आपां की कैरोसिन ऑयल दे विच प्रिजर्व करके रखते हैं सोडियम क्यों क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मैटल है ठीक है। नेक्स्ट है अ लस्ट्रस कलर्ड नॉन मैटल किहड़ा नॉन मैटल है जिहड़ा कि शाइनी है ठीक है वो किहड़ा सी आयोडीन एक डायमंड भी है विच इज़ द मोस्ट लस्ट्रस नॉन मैटल है ठीक है। नैक्सट है अ मैटल विच कैन मैल्ट वाइल कैप्ट ऑन पाम जो आप पाम हथेली के उपर रखते हैं मैटल की है किहड़ा मैटल है जिहड़ा कि मैल्ट हो जाता है किहड़ा सीगा वो गैलियम। ये सारियां की एक्सैप्शनस ने जिहड़े आपां की चैप्टर की स्टार्टिंग्स दे विच पढ़ियां सीगियां ठीक है। अ मैटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट किहड़ा मैटल है जिहड़ा कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है जिहड़ा वो किहड़ा सी lead इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद द वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन नेम वन मोर मेटल दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर समटाइम्स वैन इमर्स्ड इन वाटर। ये दसना है कैल्शियम मैटल में जब आप वाटर के नाल रिएक्ट करवाने तो वो फ्लोट करना स्टार्ट क्यों हो जाता है ठीक है। ये दसना है यदा रीजन एक्सप्लेन करना फिर वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है एक होर मैटल दसना है जोड़ा कि फ्लोट करता है ठीक है वैन इमर्सड इन वाटर जो आप वाटर के इमर्स करांगे वो किहड़ा सी देखिए आप पढ़िया से देखो कैल्शियम में जब भी आप वाटर के नाल रिएक्ट करवावांगे ठीक है तो की बनूगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हाइड्रोजन गैस जी है कि वो मैटल की सरफेस के उपर की हो जाएगी स्टिक हो जाएगी ठीक है मैटल के सरफेस के उपर की स्टिक है तो वो की करूँगी हाइड्रोजन गैस उनकी फ्लोट करने के हैल्प करूँगी ठीक है। नैक्सट मैटल किहड़ा पढ़िया सी आपां मैगनीशियम भी जब आप वाटर के नाल रिएक्ट करवावांगे तो मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस की हाइड्रोजन गैस भी मैटल्स के उपर की स्टिक हो जाएगी तो उन्होंने फ्लोट करने के हैल्प करूँगी ठीक है। ये दो मैटल्स से जोड़े आप पढ़े से जो फ्लोट करते हैं। नैक्सट है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग एल्यूमीनियम ऑक्साइड इज़ कंसीडर एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किहड़े हुंदे सीगे विच रिएक्ट्स विद द बोथ एसिड एंड द एज वेल एज द बेस ठीक है जिहड़े कि एसिड दे नाल भी रिएक्ट करते हैं बेस दे नाल भी रिएक्ट करते हैं वो किहड़े सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ठीक है। नैक्सट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट जोड़ा आयनी कंपाउंड्स है वो मोल्टन स्टेट दे विच की इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है रीजन की सीगा इन दी मोल्टन स्टेट आयन्स आर फ्री टू मूव ठीक है जो आयन्स की मूव करने की फ्री होंगे ठीक है तो आई की इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी ठीक है। नैक्सट है 14th क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड द ऑक्सीजन आर 20 and 8 रिस्पैक्टिवली। नहीं कि इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाना है कैल्शियम की क्या ऑक्साइड कैल्शियम का की 20 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का की 8 है एटॉमिक नंबर ठीक है। तो ये की होंगे 2 8 8 2 कैल्शियम का की 2 8 2 6 ठीक है के एल एम एन शैल की है किन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे ठीक है। तो ये के तो एल दी शैल्स हूँ इन्हें की 2 इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट करने तो बाद ठीक है ये की 2 इलैक्ट्रॉन्स की की कमी है ठीक है इनके 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए ठीक है। हुण इन्होंने की करांगे आप जो इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन की लूज़ किए तो एक कैल्शियम कैटाइन हो जाऊगा ठीक है इन्हें इलैक्ट्रॉन 2 इलैक्ट्रॉन की गेन किए तो ये की कैल्शियम ऑक्साइड एनाइन हो जाऊगा ठीक है। हम इन्हों आप ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन करना ठीक है जो इन्हों कि इलैक्ट्रॉन दे दूगा तो इन्हों को अपोजिटली चार्ज हो जाऊगा विच अट्रैक्ट ईच अदर एंड होल्ड दिस कंपाउंड बाय द
स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके यही करना सी आपां। नैक्सट किसी नेम दी कॉन्स्टीट्यूट मैटल ऑफ द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के किहड़े कॉन्स्टीट्यूट मैटल सीगे, किहड़े सी मैटल्स दे विच ब्रॉन्ज दे लई कॉपर प्लस की टिन, ठीक है। ब्रॉन्ज दे विच मैटल्स नूं की है मिक्स करके की अलॉय दे विच तैयार किया जाता, ठीक है। नैक्सट हैगा 15th क्वेश्चन, ए मैटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। आपां की पिछे क्वेश्चन करके हटे जिहदे विच आपां की जदों की मैटल नूं की एयर दे विच की एक्सपोज करदे हैं तो उहदे उपर की ग्रीन कोटिंग आ जाती है। किहड़ा मैटल सीगा, कॉपर। इतों की आपां नूं पता लगे एक्स की है, कॉपर मैटल है। आइडेंटिफाई द मैटल एक्स एंड नेम दी, अच्छा ये दसना सी, ठीक है। एक्स तो अपन की पता लग गया कॉपर है, ठीक है। नेम दी प्रोसैस रिस्पोंसिबल फॉर दिस प्रोसैस। नेम दी प्रोसैस, केड़ा प्रोसैस होगा ये केड़ा प्रोसैस ही, करोजन, ठीक है। नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द ग्रीन कोटिंग फॉर्मड ऑन द मैटल। पिछे आप क्वेश्चन किया ਉਹਦਾ फॉर्मूला की सीगा, कॉपर कार्बोनेट। की सी ਉਹਦਾ नेम, कॉपर कार्बोनेट। द फॉर्मूला की है कॉपर CuCO3। ओके लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट मैथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसैस। किहड़े 2 मैथड्स ने जी तो कि आप इसनूं की करोजन तो की बचा सकते हो। किहड़े सीगे, ज़्यादा आप मैटल नूं की टिन दे नाल की कवर कर देंगे, ठीक है, ਜਾਂ फिर ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਲੋਏ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਲੋਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 16 ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੈਨ ਹੀਟਡ ਇਨ 에ਅਰ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ Al2O3 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बैलेंस करांगे, बैलेंस करके की करांगे, ठीक है 4 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ देखो एलुमिनियम भी 4 हो गए, ठीक है, 6 ये बैलेंस हो गई, ठीक है। आयरन विद द स्टीम, नेम द प्रोडक्ट। ਇਹਦਾ प्रोडक्ट ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਆਇਰਨ ਵਿਦ ਦ ਸਟੀਮ, ਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਬਟੇਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, मतलब कि वाटर गैशियस फॉर्म, ठीक है। रिएक्ट करवाया तो की बनूगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। नैक्सट है कैल्शियम विद दी वाटर, वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। अपन हुणे एक क्वेश्चन किया है कि सी जब कैल्शियम वाटर नाल रिएक्ट करवावांगे तो की बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दी हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होंगी है। हाइड्रोजन गैस सरफेस के उपर की स्टिक हो जाती है तो वो की है उन्होंने फ्लोट करने की हैल्प करती है। ओके नैक्सट है 17th क्वेश्चन, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 बाय द ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। हम आप Na2 का करना, ठीक है। सोडियम का आपको की पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ओके हम सोडियम के आप 2 8 1, ओके ये 2 6 एक सोडियम किन्ने 2 ने ना, की बनाना आप सोडियम ये की आप ट्रांसफर इलैक्ट्रॉन के नाल आप शो करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ Na2 मतलब कि 2 ने ये सोडियम एटम्स तो एक सोडियम एटम ये 2 8 1, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलैक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। इन्हों को एक इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा, ठीक है। ये एक इलैक्ट्रॉन की करेंगे ठीक है, इनू की कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये कुल की एक ही हो जाएगा Na प्लस एक के बन जाएगा 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके किया, ठीक है। ऑक्साइड एनाइन बना लेगा, ठीक है। तो इतों की अपोजिट आइंस ने अट्रैक्ट करने के ईच अदर, ठीक है। तो इतों की सोडियम की ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। वाई आर दी आयनिक कंपाउंड्स यूजली हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स के हार्ड क्यों होंगे, बिकॉज दीज
because there is a strong electrostatic force of attraction which hold these elements together. Okay, next हैगा how is it ionic compounds in the solid state do not conduct electricity but they do so when in the molten state. ionic compound solid state ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ electricity conduct नहीं करते but ਕੀ है molten state ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ solid state ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ions are not free to move but in molten states ions are free, that's why they conduct the electricity. Okay, next, what are the amphoteric oxides? Choose the amphoteric oxide from the amongst the following oxide. Amphoteric oxides KDC सी which reacts with both acidic and base acid and the bases as well as the bases. These are called the amphoteric oxides. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹ ਕੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ ਮਿਨਰਲ ਔਰ ਐਂਡ ਗੈਂਗ minerals ਕਿਹੜੇ ਸੀ naturally occurring substances from the earth crust are called the minerals. और की सीगा और सीगा the mineral that contain the maximum amount of metal are called the ore. Okay, next gang की सीगा the mineral or the ore that contains the impurities are called the gang. ठीक है ਜਿਹੜੇ ਵੀ minerals ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ impurities ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ gang ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ next ਹੈਗਾ 20th question show on a diagram transfer of electron between the atom in the formation of magnesium oxide. Write the symbol of the cation and then anion present in the magnesium oxide. ठीक है same question है magnesium ਦਾ कितना है लास्ट क्वेश्चन चलो करके देख लेते हैं ठीक है मैग्नीशियम का कितना है 12 एटॉमिक नंबर ठीक है ऑक्सीजन का 8 है ठीक है इतने किन्ने होंगे के एल एम एन शेल के 2 ठीक है 2 ते 6 मीनस कि ये 2 इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा ऑक्टेट नालों ठीक है तो ये 2 इलैक्ट्रॉन्स की कमी है ठीक है निकल के लेस है 2 इलैक्ट्रॉन्स एक ही अपने की 2 इलैक्ट्रॉन्स की कर दूगा ट्रांसफर कर दूगा ठीक है ट्रांसफर करके की करूँगा मैग्नीशियम कैटाइन दी फॉर्म दे विच ठीक है ऑक्साइड की है एनाइन दी फॉर्म दे विच हो जाऊगा ठीक है 2 इलैक्ट्रॉन लूज़ करूँगा ठीक है 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगा कि 2 इलैक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगा ठीक है यही सी राइट दिस सिंबल्स ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है हुण इसकी ओपोजिट चार्ज में अट्रैक्ट करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म कर लेंगे ठीक है नेम द सॉल्वेंट इन विच द आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल नेम द सॉल्वेंट इन विच द आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल दैट इज़ वाटर किहड़ा सॉल्वेंट है जिहदे विच कि आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल है कि वाटर दे विच कि ईजली कि सॉल्यूबल हो जाते ठीक है डिजॉल्व हो जाते हैं वाई आर द एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर एबल टू कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी बिकॉज इन एक्वा सोल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स आर डिसोशिएट इनटू द आयन्स विच आर फ्री टू मूव टू कंडक्ट द इलैक्ट्रिसिटी क्योंकि जो आयन्स होंगे वो की फ्री होंगे मूव करने के लिए कि ईजली के कंडक्ट करेंगे इलैक्ट्रिसिटी में ठीक है ये सारे की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीगे आई होप कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कि क्वेश्चनस वधिया लगे होणगे ते वधिया